Good evening, everybody. Bachai, I hope you are able to hear my voice clearly. All right. Bachai, we'll be discussing sample paper again today. So I'll be just beginning up with discussion of sample paper. It is from a book. Are you able to hear my voice clearly? सबको मेरी आवाज क्लियर सुन रही है? All right. ठीक है. चलो. So बच्चे will be starting up with discussion of sample paper 2. It is actually taken from a book. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं बच्चे जो आपने पहले भी देखे होंगे. Alright, because MCQ bank for class 10th is not much, so many of the questions I think we have already discussed. तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको लग सकते हैं कि जो रिपोर्ट दोबारा जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, चलो. सो आई थिंक ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमने ऑलरेडी एक पिछले सैंपल पेपर में डिस्कस कर लिया था. So this question is a dilute ferrous sulfate solution. It was gradually added to beaker containing acidified potassium permanganate solution. The light purple color solution disappears and fades. बच्चे this is actually from your NCERT exemplar book. तो बच्चे इसमें जो correct option है, the correct option is A. Potassium permanganate KMnO4. It acts as an oxidizing agent. And this will oxidize ferrous sulfate. बच्चे ferrous sulfate किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक सल्फेट. इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. दिस इज समथिंग दैट यू विल बी लर्निंग इन क्लास 11th. ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक से क्वेश्चन लिया गया है. तो इसका आंसर है KMnO4 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस ferrous sulfate to ferric sulfate. All right, question number 2. The following diagram shows a flow chart of the process of preparation of NaOH from common salt, NaCl. But a concentrated solution of NaCl, this is known as brine. This is known as brine. और बच्चे ये जो process है, this is known as chlor-alkali process. We all know this process. This is chlor-alkali process, जहां हम NaCl brine की electrolysis करते हैं. All right. तो बच्चे in the solution you will get NaOH. At anode you will get chlorine gas. कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? कैथोड, which gas will you obtain? Anybody? Cathode, which gas will you obtain? Hydrogen gas. All right, correct. Nitin is absolutely right. You will get hydrogen gas. So at cathode you will get hydrogen gas. All right. तो बच्चे इसके ऑप्शन देखते हैं. आइडेंटिफाई गैस X. ये रहा हाइड्रोजन. दिस इज द आंसर, हाइड्रोजन. ऑलराइट, हाइड्रोजन इज द आंसर. इट इज अ कलरलेस odorless gas which is obtained at cathode. एनोड पे क्लोरीन गैस. ऑलराइट, इट इज गिवन हियर. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. On the basis of sequence of given reactions, identify the most and the least reactive elements. बच्चे इसमें लीस्ट और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? तो बच्चे एज यू कैन क्लियरली सी x कैन डिस्प्लेस y, सो x इज मोर रिएक्टिव देन y. ये तो पक्का हो गया. देन x, ओके, x कैन डिस्प्लेस y अगेन, तो x वही चीज बन रही है. z इज डिस्प्लेसिंग x. ओके, z भी x को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Z is more reactive than X. तो बच्चे इसमें जो सबसे रिएक्टिव है, the most reactive is Z and least reactive is Y. So we will pick D option. All right, Z is the most reactive element and least reactive is Y, क्योंकि वो दोनों से डिस्प्लेस हो रहा है. All right, चलो, I hope this is clear to everybody. Easy question था. Question number 4. In which of the following chemical reactions or equations the abbreviations used represent correct states? बच्चे this is from your NCERT book. ये NCERT book से direct question लिया गया है. तो बच्चे what you have to remember is hydrogen will be in gaseous state, oxygen in gaseous state, पर water आपको liquid state में मिलेगा NCERT की book के according. तो we'll pick option C, gas, liquid.
सो ऑप्शन सी, फोर्थ सी। ऑल राइट, वेरी गुड। आप में से काफी सारे बच्चों को आंसर्स आते हैं, इंस्टेंटली आप आंसर दे रहे हैं, सो दैट मीन्स यू हैव बीन रिवाइजिंग वेल। ऑल राइट, सोडियम क्लोराइड। बच्चे सोडियम क्लोराइड को आप किसके साथ रिएक्ट करोगे कि आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिले? तो बच्चे यू कैनॉट रिएक्ट इट विद HCl ऑब्वियसली, आपको यहां चाहिए सल्फ्रिक एसिड H2SO4। ऑलराइट, अब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को आयरन क्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यू कैन रिएक्ट इट विद आयरन। अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, NH4OH। लेड क्लोराइड, तो इट कैन बी Pb if I am not wrong. All right, let's see क्या ऑप्शंस दे रहे हैं ये हमें। ए में तो कंसेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड आएगा बच्चे, ए हैज टू बी कंसेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? NaCl plus H2SO4, it will give me sodium sulfate Na2SO4 plus HCl। तो फर्स्ट इज कंसेंट्रेटेड H2SO4, दैट इज करेक्ट। अब बच्चे HCl को अगर आपको आयरन 3 क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज मेटल, बी मेटल। देन हाइड्रोजन क्लोराइड टू अमोनियम क्लोराइड, you can use neutralization, HCl plus NH4OH, it will give me NH4Cl plus water। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर NH4OH भी हो गया। फिर है बचे हाइड्रोजन क्लोराइड से आपको लेड क्लोराइड चाहिए। ऑल राइट, हाइड्रोजन क्लोराइड विद लेड क्लोराइड HCl, FeC, ओके। तो बच्चे ये यूज कर सकते हैं। You want, okay, just a moment, just a moment, just a moment, just a moment. बच्चे I can also use ammonia gas. If you react ammonia gas, अगर आप अमोनिया गैस को HCl के साथ रिएक्ट करते हो तब भी आपको NH4Cl मिल सकता है। ऑलराइट, तो बच्चे अब आपको यहां ये डिसाइड करना है कि D कैसे बनेगा, लेड क्लोराइड आप कैसे बनाओगे। तो बच्चे आई थिंक द मोस्ट द बेस्ट आंसर वुड बी बी भी हो सकता है, Fe NH4OH अमोनिया लेड नाइट्रेट। ऑलराइट बच्चे, वी हैव टू सी whether NH4OH can react with HCl or not. Acid plus base, you can get ammonium chloride plus water. तो बच्चे मेरे को तो लग रहा है कि B and C दोनों probable है, B and C both probable. Okay, Simran wants to go with B. Simran, why do you want to go with B, not C? क्या reason है? What is your reason for it? Okay, we have to see whether lead nitrate, एक में अमोनिया है एक में NH3 है। ओके, लेट्स चेक दिस इक्वेशन। अमोनिया प्लस ओके NH3 and HCl, बच्चे NH3 and HCl will form ammonium chloride, that's for sure। NH4OH and HCl, that will also work। let me just check। ओके बच्चे, यहां मेरे एक से ज्यादा आंसर बन रहे हैं। You can get ammonium chloride, you can get ammonium chloride with both NH4OH and NH3, so we will pick both option B and C। B and C में से दोनों में सही हो सकते हैं। बच्चे अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl में डालोगे, you will get NH4Cl plus water, and ammonia gas passed with hydrogen chloride gas, you will get ammonium chloride। तो B and C both are correct। Is it clear? B and C दोनों correct हैं। Is that clear everybody? Clear? Just a minute। All right, chalo, let's go on to next question।
या दैट इज द कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। अनीशा इज करेक्ट, अगर यहाँ वाटर दे देते या कुछ दे देते तो क्लियर हो जाता। अब हमें यहाँ दोनों पिक करने पड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के साथ बन सकता है। चलो लेट्स मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन बटर? बच्चे ये मैंने आपको लिखाया भी था, इसका आंसर है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ऑयल्स एंड फैट्स वी यूज BHT एंड BHA। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C, 6C। ऑलराइट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। What happens when calcium is treated with water? बच्चे we need to remember when calcium plus water react, there will be moderate reaction with cold water, and it will form calcium hydroxide plus hydrogen gas. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चे हम इसके ऑप्शन पिक करेंगे। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये तो गलत है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, ये भी गलत है। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, दिस इज करेक्ट। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, दिस इज करेक्ट। तो बच्चे 3 and 4 आर करेक्ट। विल पिक ऑप्शन डी। All right, next question. Question number 8. A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. बचे crushed eggshells are calcium carbonate. तो calcium carbonate plus acid, it will give me salt, water plus CO2 gas. और बचे जो CO2 गैस है ये क्या करेगी? It will turn lime water milky. All right, next question number 9. Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? अगर बच्चे हम थोड़ा सा एसिड पानी में ऐड कर दें तो कौन सा फिनोमेना होगा? बच्चे एसिड प्लस वाटर विल गिव मी न्यूट्रलाइजेशन, it will also give dilution, it will also give salt formation, no salt formation, ionization भी होगी। okay, not neutralization, sorry, neutralization is acid plus base, तो ये दोनों नहीं होंगे, sorry। तो we will pick 1 and 3, so correct option is B, 1 and 3, ionization and dilution, so 1 and 3। all right, question number 10. KClO3 heated to give KCl and 3 oxygen. But this is what? This is thermal decomposition reaction. Thermal decomposition. So we'll pick A. 10th A. Potassium chlorate. When you heat it, it will form KCl plus oxygen. All right. Chalo. Next question. Question number 11. All right. A plant is kept in dark for 2 days. A leaf is used in an experiment to investigate the effect of 2 factors on photosynthesis as shown in the diagram. बच्चे as you can clearly see, यहाँ आप क्या देख रहे हो? Alright, ये वाला जो पोर्शन है, इस पे लाइट पड़ रही है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बच्चे यहाँ हम किन 2 फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस and CO2 is necessary for photosynthesis. तो बच्चे अगर हम स्टार्च के लिए टेस्ट करें, अगर आप स्टार्च के लिए टेस्ट करो, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जो कॉर्क के अंदर पास हो रहा है, बच्चे दिस इज कवर्ड, दिस इज नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तो बच्चे क्या होगा? इन Q and R, Q में नॉट एक्सपोज्ड, R में एक्सपोज्ड, so R में photosynthesis होगी, in portion R you will see photosynthesis, but in Q no photosynthesis, यहां कोई photosynthesis नहीं होगी। तो बच्चे now you can pick, leaf is tested for starch using iodine solution, तो बच्चे Q में
no color change because no photosynthesis, तो brown. Okay, but R में photosynthesis होगी, so it will turn blue black, so we'll pick option D. Question number 11, D. all right, just a moment. बच्चे ये जो पोर्शन R है इधर CO2 एब्जॉर्ब हो गई. ऑल राइट, तो बच्चे दोनों जगह फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इट विल रिमेन ब्राउन. करेक्ट, ब्राउन, नो कलर चेंज. बच्चे R में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है R वाला, इधर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, सो नो CO2. राइट, लाइट इज अवेलेबल बट नो CO2. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी. 11th B. इज दैट क्लियर? दोनों जगह कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है. बच्चे ध्यान से देखिए, R के अंदर CO2 एब्जॉर्ब हो गया और जो डार्क कलर्ड पोर्शन है वहां भी कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी. Q and R, नो फोटोसिंथेसिस. इज इट क्लियर? Is it clear everybody? Okay, all right, chalo. Question number 12. Which substances are produced by anaerobic respiration in yeast? बच्चे anaerobic respiration in yeast, यहाँ कौन से substances produce होते हैं? We get CO2, alcohol, ठीक है, CO2 and alcohol. lactic acid वगैरह तो नहीं मिलेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. We'll get CO2 and alcohol, anaerobic respiration in yeast. ठीक है, is it clear? All right, question number 13. Which of the following is most appropriate for aerobic respiration? Aerobic respiration के लिए सबसे appropriate क्या है? बच्चे glucose breaking down into pyruvate, and this pyruvate will move to mitochondria where CO2 water energy is produced. तो बच्चे इसका सही ऑप्शन है बी. Glucose, it is broken down into pyruvate in cytoplasm. This pyruvate will move into mitochondria and this will produce. Okay, just a moment. इससे appropriate एक और इक्वेशन है D. बच्चे when glycolysis occurs, तो थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, pyruvate plus energy. In mitochondria, this pyruvate, it will break down completely to form CO2 water energy. तो बच्चे ज्यादा appropriate इसमें D ऑप्शन है. D ऑप्शन, पायरुवेट से भी एनर्जी मिलेगी. पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है बच्चे तब भी एनर्जी मिलती है. इज इट क्लियर? 13D क्लियर? बच्चे you need to remember when glucose breaks down into pyruvate in cytoplasm, glycolysis में भी 2 ATP molecules रिलीज होते हैं, तो वहां भी थोड़ी बहुत एनर्जी बनेगी. And this pyruvate will then move into mitochondria where it will break down to form CO2 water energy. All right, question number 14. All right, बच्चे this is vena cava. Number 2 is vena cava. This will bring deoxygenated blood, okay, inside. Okay, this is now going out. All right, vena cava, where is it connected? This side. Okay, so this is pulmonary artery. This is pulmonary artery. All right, okay. Okay, what is 3? What is 3? Pulmonary vein. Aorta. 3 is aorta. 4th is pulmonary vein. All right. So, बच्चे, if I look at the options, it carries blood from the body. तो बच्चे, second is vena cava. Carries blood from lungs, it is pulmonary vein. 4th, carries blood to lungs is pulmonary artery, that is 1, and carries blood of the body.
ब्लड टू दी बॉडी होना चाहिए, ब्लड ऑफ बॉडी नहीं, ब्लड टू बॉडी, दैट शुड बी एओर्टा 3। तो बच्चे विल पिक ऑप्शन डी, विल पिक ऑप्शन डी, सी और डी, कौन सा पिक करेंगे? बताइए। डी ऑप्शन, ऑल राइट। चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम। ऑल राइट, ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम, बच्चे दिस इज शोइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चे व्हाट इज एक्स इज ट्रैकिया, एंड इंटरेस्टिंगली एक्स सिर्फ यहां है, तो मतलब डी ऑप्शन ही है। ट्रैकिया एक ही को शो किया गया है, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प अस टू पिक द आंसर। ओके, डब्ल्यू इज लैरिंग्स, तो दैट इज ट्रू। Y is bronchioles, ये अंदर, करेक्ट। Bronchus is Z, ये ट्यूब, करेक्ट। So we'll pick option D, option D. All right. Question number 16. In the figure given alongside, the structure associated with human kidneys are marked X, Y, and Z. The relative concentration of urea in these structures is, बच्चे सबसे ज्यादा यूरिया किधर होगा? अगर आप ध्यान से देखो, ये यूरेटर है, यूरेटर से यूरिन बाहर जाता है, तो यूरिन हैज मोस्ट, यूरिन मैक्सिमम यूरिया। ओके, यूरेटर में मैक्सिमम यूरिन होगा। अब इधर से ब्लड बाहर जा रहा है, तो यहां लीस्ट फिल्टर होके, ठीक है, वाई में ठीक ठाक होगा, वाई में ठीक ठाक होगा। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, Y is always lower than Z, Y के अंदर जो यूरिया होगा वो Z के मुकाबले हमेशा कम होगा। तो बच्चे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बच्चे जो ब्लड बाहर फिल्टर होके जा रहा है समटाइम्स हायर, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। Y is always higher than Z, ये भी गलत है। जो ब्लड अंदर आ रहा है फिल्टर होने के लिए, उसके अंदर यूरिया, अगर हम कंसेंट्रेशन देखें, यूरिन के अंदर ज्यादा होगी, तो डी भी नहीं हो सकता। तो विल पिक ऑप्शन सी, विल पिक ऑप्शन सी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यूरेटर्स के अंदर बच्चे यूरिन होता है, और यूरिन के अंदर कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिया है, तो सबसे ज्यादा यूरिया वही है। जो ब्लड अंदर आ रहा है फिल्टर होने के लिए, उसमें भी यूरिया है, पर जो ब्लड बाहर जा रहा है उसमें तो बहुत ही कम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। बच्चे अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देखो कॉन्वेक्स मिरर के आगे जिसको प्लेस किया है, तो वो इमेज कहां फॉर्म होगी उसकी? बच्चे कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। वेयर विल यू सी द इमेज? बिहाइंड। In convex mirror, we will see virtual image behind the mirror. All right. Question number 18. Study the given ray diagrams and select the correct statement from following. Okay. This should be a lens and this should be a concave mirror. This is convex. Okay. Chalo. अब बचे डिवाइस एक्सिस कॉनकेव मिरर, दिस इज रॉन्ग। डिवाइस एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस एंड डिवाइस वाइज कॉनकेव, हुज फोकल लेंस आर 10 and 25। बचे दिस इज रॉन्ग। दो, एक इसका 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ और इसका 25 सेंटीमीटर, तो 20 and 25, 20 and 25 रिस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी, 18th डी। All right. Question number 19. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of size of the object? बच्चे convex lens में same size की image चाहिए, तो where will you keep it? At twice the focal length, 2f पे रखेंगे, B option। 19B. बच्चे when you keep object at 2f in front of convex lens, आपको image वही मिलेगी दूसरी साइड पे सेम साइज की।
All right. Question number 20. A student obtains a blurred image of distant object on a screen using convex lens. To obtain a distinct image on the screen, he should move away from screen, towards the screen, to a position very far away, either toward or away from the screen, depending upon position. बच्चे देखो कॉन्वेक्स लेंस से है ना, तो आप स्क्रीन को आगे पीछे करके देखोगे, आगे पीछे करके देखोगे कि ब्लरिंग कहां खत्म हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ब्लर्ड इमेज बनी है तो मतलब फोकस सही नहीं हुआ। यू हैव टू आइदर मूव अवे और मूव टूवर्ड्स, दोनों करके देख सकते हैं। क्लियर? 20D, आपने अगर लैब में ये प्रैक्टिकल देखा हो तो जब आपको फोकस करना है तो आपको स्क्रीन आगे पीछे करनी पड़ सकती है। क्लियर? बताइए 20D एवरीबॉडी। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 21। विच फिनोमेना आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो? सबसे पहले बच्चे, जब रेनबो में ड्रॉप में, जब रेन ड्रॉप में लाइट एंटर होती है, सो व्हाट डू यू सी? वी सी डिस्पर्जन। उसके बाद सेकंड सरफेस पे क्या होती है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड सरफेस पे क्या होगा जब बाहर आएगी? रिफ्रैक्शन। तो बच्चे विल पिक दी ऑप्शंस डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चे आप देख लीजिए इसमें कौन से ऑप्शन है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल। सी। बच्चे विल नॉट पिक टोटल, यू विल जस्ट पिक इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट बी। सी ऑप्शन पिक करेंगे, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी आर गोइंग बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बच्चे, एनसीईआरटी में इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है, टीआईआर नहीं लिखा, तो हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन पिक करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। AB and CD are two spherical mirrors. They form parts of a hollow spherical ball with its center at O as shown in diagram. What is the ratio of their focal length? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है तो फोकल लेंथ तो हाफ पे ही होगा। बच्चे 1:1, व्हाट डू यू थिंक? 22C 1:1। ऑल राइट, क्योंकि बच्चे दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है एंड F इज इक्वल टू R/2, तो दोनों का फोकल लेंथ भी सेम होगा, तो 1:1। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 23। फिगर शोज a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of medium B with respect to medium A. All right, तो बच्चे you have to calculate refractive index of B with respect to A. तो it would be sin 60 degree over sin 45 सॉरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60? sin 60 is √3/2 and sin 45 degree. Sin 60 is √3/2 and this would be 1/√2. चलो solve this out, let's see what answer you'll get. B option, √2/√3. B option, √2/√3. All right, A or B? √3/2 or √2/3? A option.
बच्चे इसको रैशनलाइज करके देख लो, √3/2 इंटू, ये ऐसे हो जाएगा √3 इंटू √2/2। ऑलराइट, ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे? ऑलराइट, रैशनलाइज करके फिर देख लो, इसका आंसर आ जाएगा √3/√2। चलो, आपकी मैथ्स तो मेरे से अच्छी होगी, वही मान के चल रहा हूं मैं। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 24। ओके, two identical prisms PQR and P dash QR dash are given. White light is passed through PQR as shown. All right, बच्चे स्पेक्ट्रम बन रहा है। All right, which of the following will yield white light again? बच्चे आपको रिकॉम्बिनेशन पिक करनी है, बी ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। बी ऑप्शन पिक करेंगे, रिकॉम्बिनेशन करनी है। एक ऐसे हो गया प्रिज्म, तो दूसरा इन्वर्ट करके रखेंगे। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शन बी। Which of the following are endothermic processes? Endothermic, बच्चे sublimation of dry ice endothermic, evaporation of water again endothermic, यहाँ heat absorb होती है। बच्चे यहाँ 2 and 4 पिक करना है हमें। 25D, 25D। All right, question number 26. 4 samples A, B, C and D, they were tested by student using pH paper. बच्चे pH paper से हमने 4 solutions को टेस्ट किया। They observed some changes, inferred the pH of sample which is tabulated as below. देखो बच्चे, green 7, orange 4, blue 9, pink 2. Which is the most acidic? All right, बस यही बताना है, D option. D is the most acidic with pH 2. D option. All right. Question number 27. 4 metals A, B, C, D are tested with water, steam and dilute HCl and results are tabulated. तो बच्चे A does not react with water, steam के साथ react हो रहा है, तो बच्चे that means it can be zinc, aluminium, iron, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। B does not react, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑल राइट, ओके, तो दैट मीन्स आप पीछे चलते हैं, चलो देखते हैं क्या है। बिटवीन विच 2 मेटल शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द सीरीज? हाइड्रोजन किसके बीच में आनी चाहिए? देखो बच्चे, वाटर के साथ नो रिएक्शन विद स्टीम, नो रिएक्शन विद एसिड, तो मतलब एक तो डी हो गया। ऑलराइट, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन नहीं, स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं, HCl के साथ रिएक्शन है बी, तो वेयर शुड वी प्लेस? बी एंड डी के बीच में हाइड्रोजन किधर आनी चाहिए? बी एंड डी, व्हाट डू यू से? हाइड्रोजन शुड कम बिटवीन बी एंड डी, क्योंकि देखो बच्चे, वाटर के साथ सी का रिएक्शन है, स्टीम के साथ रिएक्शन है, HCl के साथ रिएक्शन है, मतलब ये तो हाइड्रोजन के ऊपर है, ये दोनों हाइड्रोजन के ऊपर है। और बी को देखो, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, पर वाटर और स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई। और डी का तो कोई रिएक्शन नहीं है, तो वी शुड प्लेस हाइड्रोजन बिटवीन बी एंड डी। ओके, अनेशा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन को किन 2 एलिमेंट्स के बीच में रखें। व्हाट यू हैव टू सी देयर रिएक्टिविटी। इफ यू क्लियरली सी, ध्यान से देखिए, यहां स्टीम के साथ रिएक्शन है, या HCl के साथ रिएक्शन है, तो ए तो हाइड्रोजन के ऊपर है, इट इज अबव हाइड्रोजन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी को देखो, does not react with water, does not react with steam, it reacts with HCl, तो बच्चे B is less reactive than A, पर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है HCl से, तो मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर है। C को देखो, रिएक्ट, तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मैक्सिमम। D को देखो, do not react, तो मतलब दिस इज बिलो हाइड्रोजन,
बिलो हाइड्रोजन। तो बच्चे किसके प्लेस करोगे बीच में हाइड्रोजन को? बिटवीन बी एंड डी। अनीशा, इज इट क्लियर नाउ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल राइट, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 28। इन ईच टेस्ट ट्यूब्स A, B, C and D, 2 ml of aqueous solution of Al2SO4 3 was filled। बच्चे इसमें भी रिएक्टिविटी देखनी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। टेस्ट ट्यूब ए में जिंक था, तो बच्चे टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन होगा, यस, नो, MgAlZn, नो। टेस्ट ट्यूब ए में नो रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब बी में नो रिएक्शन, एक मिनट, MgAlZn। तो बच्चे एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ए में भी रिएक्शन नहीं होगा, बी में भी रिएक्शन नहीं होगा, सी में भी रिएक्शन नहीं होगा, डी में भी रिएक्शन नहीं होगा। बच्चे चारों टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं है। बच्चे हाइड्रोजन सी और डी के बीच में ही आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन सी और डी के बीच में क्यों नहीं आ रहा? ऑलराइट बच्चे देखो, सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट रिएक्ट रिएक्ट। उससे कम रिएक्टिव कौन सा है? ए। उसके बाद कम रिएक्टिव कौन सा है? बी। उसके बाद डी। तो बच्चे हाइड्रोजन किधर प्लेस करोगे? बिटवीन बी एंड डी। ए और सी के बीच में तो रख ही नहीं सकते ना, हाइड्रोजन को एग्जैक्ट पोजीशन देनी है बी और डी के बीच में। इज इट क्लियर अनीशा? बच्चे जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो ऊपर चले गए ना, इसलिए सी और डी के बीच में रखेंगे। चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या करना है बच्चे? इसमें किसी में कोई रिएक्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी। इसमें बच्चे एल्यूमिनियम सारे जितने एलिमेंट्स दिए उनसे रिएक्टिव है, तो कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर एवरीबॉडी? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन सॉल्ट बीइंग यूज्ड इन किचन also be used as raw material for following। बच्चे कॉमन सॉल्ट किचन में यूज होता है, साथ में हम इसको और कहाँ यूज करते हैं, किन के लिए रॉ मटेरियल यूज करते हैं? ऑलराइट, देखो बच्चे, अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है, सॉरी, अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो ब्लीचिंग पाउडर में NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी क्लोरीन गैस के लिए, तो 2 तो आपको चाहिए। और वॉशिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं? उसमें NaCl, वाटर, तो वॉशिंग सोडा भी बनेगा, बेकिंग सोडा भी बनेगा। तो बच्चे 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर होना चाहिए, 1, 2 एंड 3, पर वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या पिक करें? 1 एंड 2, क्योंकि इसमें क्या होता है, NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया प्लस CO2, so you get NaHCO3। all right बच्चे, we'll pick up baking soda and bleaching powder, so 1, 3, 4। what do you think? slake lime? slake lime के लिए तो हमें नहीं चाहिए, तो 4 is not correct। we should pick 2 and 3। 2 and 3 तो पक्का हो गया, फिर उससे हम आगे वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं, तो 1, 2 एंड 4 तो है नहीं, तो विल पिक 1 एंड 3, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 30। एसिटिक एसिड वाज एडेड टू सॉलिड X केप्ट इन टेस्ट ट्यूब। बच्चे व्हाट इज एसिटिक एसिड? CH3COOH। टेस्ट ट्यूब, a colorless and odorless gas was evolved। तो बच्चे colorless odorless gas, it passed through lime water turns milky, तो this is CO2। तो मतलब इसका मतलब है बच्चे, कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट में एसिटिक एसिड डाला गया है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड X is सोडियम बाइकार्बोनेट एंड गैस इवॉल्व्ड इज CO2, तो करेक्ट ऑप्शन इज B, 30B।
अनेशा ब्लीचिंग पाउडर के लिए मैंने देखा था ऑप्शन, पर फिर हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट 2 and 3 है। अच्छा 1 and 3, ऑल राइट, 2 and 3 पिक करना है। जस्ट अ मोमेंट, देखो बेकिंग सोडा के लिए तो NaCl चाहिए, दिस इज फॉर श्योर, तो 3 तो आ गया। सो इफ आई पिक अप 1, 2 and 4, स्लेक लाइम बनाने के लिए तो मुझे जरूरत नहीं है, स्लेक लाइम के लिए NaCl नहीं चाहिए, तो मुझे अब देखना है 3 के साथ और कौन से ऑप्शंस बचते हैं मेरे पास। ये वाला ऑप्शन आउट हो गया, तो इसके बाद 1 and 3 आई गेट ओनली दिस ऑप्शन, सो मुझे आई हैव टू पिक C। मुझे तो बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 तो है ही नहीं बच्चे, 1 and 3 ऑप्शन ही नहीं है। दिस इज ओके, 1 and 3 पिक कर रहा हूँ, हाँ सही है, 1 and 3 पिक कर रहा हूं मैं, और कोई मुझे कॉम्बिनेशन सही नहीं दिख रहा। ऑल राइट, चलो ऑल राइट, हाँ जी सिमरन सर 28 क्वेश्चन में एक डाउट था। बोलो। सर इस रिएक्शन में जिंक एलिमिनेट नहीं बनेगा? जिंक एलिमिनेट कैसे बन जाएगा? जिंक एलिमिनेट कैसे? बच्चे इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस जिंक। नहीं सर, फिर एक और रिएक्शन होता है जिसमें हम NaOH प्लस जिंक करते हैं, उसमें तो जिंक मतलब बच्चे वो एम्फोटेरिक मेटल का रिएक्शन है, जिंक प्लस NaOH, दैट इज सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, वो तो अलग है बच्चे रिएक्शन। ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है, सॉल्ट सोल्यूशन है ना, उसके साथ रिएक्शन देखना है होता है कि नहीं, एंड देन यू हैव टू डिसाइड दिस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक एल्यूमिनियम से नीचे है, आयरन भी एल्यूमिनियम से नीचे है, सिल्वर और कॉपर तो है ही, तो किसी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 31, assertion reason. If pH inside the mouth decreases below 5.5, the decay of tooth enamel begins. This is correct. बच्चे once we eat food, हमारा जो माउथ का pH है 5.8 के करीब हो जाता है। अगर ज्यादा देर तक हम माउथ को साफ ना करें तो वो 5.5 से नीचे चला जाएगा और हमारा जो टूथ एनामल है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। The bacteria present in mouth degrade the sugar and leftover food particles and produce acids that remain in the mouth after eating. But reason is correct, assertion is correct, and assertion is correct. Explanation, you will pick A option. In the following chemical equation, copper oxide plus zinc, it gives us zinc oxide plus copper. ये सही है, zinc is getting oxidized, copper oxide is getting reduced. This is correct. The process in which oxygen is added to a substance is called oxidation. Process in which oxygen is removed, reduction. Reason is correct. तो बचे A option. 32A. 33. Translocation of sugar occurs through phloem. This is correct. It is achieved by diffusion of sugars through phloem. बचे diffusion of sugar or I don't think so it is diffusion. आप इसको diffusion तो नहीं कहोगे, तो reason is wrong. तो assertion is true, reason is false. I'll pick C. बच्चे diffusion नहीं कहेंगे, water के साथ वो dissolve होके move हो रहे हैं. Okay, so diffusion is for water, agreed, but I don't think so we can say diffusion of sugar. I have never read this term like this. उसमें क्या होता है, वाटर जो है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करता है, सो आई डोंट थिंक सो। वही तो मैं कह रहा हूं अरहम, आई एम नॉट श्योर दैट वेदर वी कैन यूज दिस इन दिस कंडीशन, क्योंकि जो शुगर है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और जहां शुगर ज्यादा होता है वहां पानी का प्रेशर बढ़ता है, फिर पानी के प्रेशर से पुश होता है पानी। नॉट श्योर वेदर वी कैन यूज दिस टर्म डिफ्यूजन। Diffusion is random intermixing of particles from higher concentration to lower.
आई डोंट थिंक सो वी कैन यूज दिस टर्म। तो मेरे हिसाब से तो इसका सी ऑप्शन आना चाहिए। ऑलराइट, विल चेक इट थ्रू। कैन वी यूज दिस टर्म डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मेरे को नहीं लगता शुगर सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं मूवमेंट के लिए। आई हैव नेवर रेड दिस बिफोर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। ओके, sun appears reddish in the morning. It will not be observed on moon. Is it correct? Yes. बचे क्योंकि मून पे no atmosphere, so there is no scattering. There will be no atmosphere, no scattering. All right. It is because moon does not have atmosphere, therefore light will not scatter. Assertion true, reason true. A. All right. 4 metals K, L, M, N identify by using hints given below. K forms basic oxide, so this is a metal. L forms amphoteric, so it can be zinc, it can be aluminium. Oxide of M dissolves in water to form an alkali, so this can be potassium or sodium. N does not react with water at all. Water के साथ कोई reaction नहीं है. Okay. तो पोटेशियम, ओके, लेट्स एल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो मुझे जिंक चाहिए, तो एल इज जिंक, एम इज के, एन इज पीबी, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, एंड के फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड ओके कॉपर ऑक्साइड, सो आई कैन पिक डी। डी ऑप्शन, कैन आई पिक डी? क्वेश्चन नंबर 35 डी। ऑल राइट बच्चे, देखो यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड से पता चलेगा। यहाँ एक और ऑप्शन है, N does not react with water, it reacts with steam. बच्चे आपको क्या लगता है, कैन वी पिक A also? A पिक कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे D लग रहा है। कैन वी पिक A? क्योंकि वहां वाटर लिखा है, पर वाटर का एक फिजिकल स्टेट स्टीम होता है। ओके, आई थिंक ए को नहीं लेना चाहिए हमें, वी शुड पिक डी ओनली। ए को नहीं पिक करते, लेट्स पिक डी, क्योंकि बच्चे वाटर का एक फॉर्म होता है स्टीम, तो वी कैन नॉट कोरिलेट दिस आउट क्योंकि लिखा ही नहीं है, तो डी ऑप्शन ही पिक करना बेस्ट है। 35 डी, या वी आर कंसिडरिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, क्योंकि उधर मेंशन नहीं है ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल लिखा है, तो इसका ये मतलब कि वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता, तो दैट वुड बी रॉन्ग। सो आई थिंक वी शुड पिक अप डी, क्योंकि यहाँ लेड है, यहाँ लेड भी है, ठीक है ना। चलो, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? वजह इसका आंसर है वैल्व्स इन हार्ट, they ensure one way flow. Question number 37, correct observation sequence: photosynthesis, absorption of light energy, conversion of light energy to chemical energy, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, to reduction of CO2 to carbohydrates. 1, 2 and 3 is the correct order, तो B option 1, 2 and 3 उसी order में लिखा हुआ है। All right, question number 38, separation of right and left side of the heart is to ensure proper and efficient working, avoid any blockage। बच्चे ये तो गलत ही है, so that means we cannot pick all these, तो बच्चे I will pick C, it allows highly efficient supply of oxygen, this is referring to double circulation, और actually यही reason है। ऑलराइट, 38C। अगर बच्चे एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो ऑल ऑफ दीज तो पिक नहीं कर सकते, तो विल पिक सी। ऑलराइट, 38C, डबल सर्कुलेशन अलाउज हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 1.6D, द नेचर ऑफ द लेंस इज प्लस में है, इट इज कॉन्वेक्स। 39A, कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 40, the radius of curvature of a mirror is 20 centimeter, the focal length is
बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का 20 सेंटीमीटर, बताओ r is 20, तो f is equal to r by 2, तो f is equal to 10, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। 40b। All right, 41. Organisms using parasitic nutritive strategy, parasites, Cuscuta, lice, leeches, ticks, centiforms, all of these. बच्चे सारे, every example here, they are parasites. Question number 42. Complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats. It will take place in small intestine. C. 42C. Question number 43. Convex lens forms a real point-sized image at focus. The object is placed. बच्चे point-sized image कब बनेगी? When object is at infinity, object is very far away. 43C. 44. The angle of reflection in the given figure. बच्चे here the angle of reflection is 0 degree. That is the reason it is retracing its path. C. 0 degree. बच्चे लाइट रिट्रेस करता है अपना पाथ कब? अरहम, यू विल सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो बच्चे, अगर ऑल ऑफ दीज दिया और उनमें से एक गलत है, अगर आप श्योर हो तो बच्चे ऑल ऑफ दीज तो आप पिक नहीं कर पाओगे, वो तो गड़बड़ी हो गया ना। तो यू विल हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर ऐसा होगा तो बच्चे क्वेश्चन ही गलत हो गया, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर उसका बोनस मिलेगा। तो हो सके तो उसको छोड़ दो, क्योंकि गलत करने से तो अच्छा ही है कि छोड़ दो, पिक अनदर चॉइस। अरहम, इज दैट क्लियर? यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बच्चे सैंपल पेपर्स में होगी गड़बड़, सैंपल पेपर्स बहुत जल्दी जल्दी में बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है। डोंट वरी, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो आपको उसका बोनस मिलेगा। ऑलवेज पिक अप द बेस्ट चॉइस। जहां भी कंफ्यूजन है उसे छोड़ दो, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है छोड़ दो। एवरी सेक्शन यू कैन लीव 4 क्वेश्चंस, चॉइस है। केस स्टडी तो और भी इजी है, यू कैन डू एनी 3, 4 वॉट एवर यू वॉन्ट। Is that clear? Chalo, let's move on. Question number 45. When you focus the image of a distant flag whose shape is given below on a screen using convex lens, the shape of image as it appears on the screen is, it should be real and inverted. Real and inverted. What do you think then? कैसा बनेगा? तो पिक ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पिक करें। ओके, लेटरल इन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। ऑल राइट, लेटरल इन्वर्जन भी होगी। ऑल राइट, ए ऑप्शन, इट विल बी लेटरली इन्वर्टेड ऑल्सो। ऑल राइट, करेक्ट। 45A। 46, a ray of light traveling in air falls obliquely on surface of a calm pond. It will go into water without deviating. वजह obliquely जा रही है, it will deviate. Rarer to denser जा रही है, तो it will bend towards the normal, deviate towards the normal. C option. 46C. A divergent lens has a focal length 20 centimeter. At what distance should an object of height 4 centimeter, so that image is formed 10 centimeter away from the lens? बच्चे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, आप कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को ताकि इमेज 10 सेंटीमीटर पे बने? ऑल राइट, कहां रखोगे बच्चे? पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती, नेगेटिव वैल्यू ही पिक करनी है। आपको 10 सेंटीमीटर पे इमेज चाहिए, तो 1/f is equal to 1/v minus 1/u.
focal length is -20, and what is the V? V is -10, वर्चुअल इमेज बनेगी, -u आपको फाइंड करना है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 1/u is equal to minus what is the value? इमेज चाहिए -10, बस 10 माइनस, ओके प्लस हो जाएगा ये इधर आके 1/20। u की वैल्यू निकालिए बच्चे, कितनी आएगी? 10 आ रही है, 10 की 20? u की वैल्यू आएगी, LCM इज 20 -2 +1 -1 -20 आ रही है बच्चे, चेक करिए एक बार इफ आई एम रॉन्ग। u इज -20, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है, बताइए डी, डी की वैल्यू क्या आ रही है? -20, सॉल्व करके बताइए मुझे। डी, चलो, ऑल राइट, सो विल गेट आंसर एज डी, -20। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Electronic structures of 6 elements A to F are given in table below 2126। बच्चे आपको इसमें वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ -2 वैलेंसी +1, तो दिस इज करेक्ट। 2627, तो इट वुड बी AC2, दिस इज रॉन्ग, B2C गलत है, BC2 होना चाहिए, इट शुड बी BC2। 27283, so it should be all right, this is -2, this is -1, this is -1 + 3, all right, -1 + 3, then DC3, this is correct, -2 + 2, so that means it would be FE3 wrong। तो बच्चे इसमें 1 and 3 करेक्ट हैं, 1 and 3 आर करेक्ट, तो इसमें हम ऑप्शन ए पिक करेंगे, ऑप्शन ए। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड करना है कटायन अनायन किसका बनेगा, और वैलेंसी से फिर फॉर्मूला देख लेना है। डी ऑप्शन कौन सा सही है? अच्छा, रॉन्ग, सॉरी, फॉर्म्ड आर रॉन्ग, ऑलराइट, रॉन्ग है बच्चे 2 and 4, ऑलराइट, करेक्ट, मैंने करेक्ट फॉर्मूला वाला ऑप्शन पिक कर लिया, ऑलराइट, ये भी देखना होता है, रॉन्ग ऑप्शन, ऑलराइट। चलो, तो 2 and 4 केस स्टडी क्वेश्चंस, लेट्स क्विकली डू दिस। दिस इज बेस्ड ऑन ब्लड प्रेशर, आई थिंक ये पहले भी किया होगा हमने, फीमेल का दिया हुआ है, ये एक सैंपल पेपर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज इज नॉर्मल रेंज? व्हिच इज स्फिग्मोमैनोमीटर, नॉर्मल रेंज इज 120/80, C। If you are 15 years female and blood pressure is 140/90, what will you infer? बचे hypertension, high blood pressure, high BP, ये तो देखने की भी जरूरत नहीं है टेबल में, it would be high BP। 15-year female, 15-year female, all right, 15-year female, okay, high blood pressure है, all right, high। चलो next, refer to table 1 and suggest the value of mean blood pressure level beyond which doctor's advice is necessary for your father's age 45। बच्चे 45 के बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज देखनी है मेल में, तो इट इज 125/83, 125/83, 125/83, तो बच्चे ये देखो 130/85 दिया है, मतलब ये तो हायर एंड पे हो गया ना, ये तो बहुत ही हाई है, यहां भी जरूरत है, पर बच्चे 45 इयर्स है तो 130/85 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मल जो रेंज दिखाया है 125/83 है, 40 to 45 मेल, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड पिक जस्ट दी अबव वन, 130/85, ए ऑप्शन। 160/100 तो बहुत ही ज्यादा है,
बच्चे 110/75 तो लो है, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर वाला देखना है ना. आई थिंक वी शुड गो विद 130/85. दिस इज रियली हाई. यहां तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी. 52. Which of the following diets would you recommend to patient of high blood pressure? Very easy. Low sugar, low fat, low salt. B option. All right. Case study 2. Sodium chloride पे dependent है ये बच्चे. All right. Select the correct statement regarding pure NaCl. It is hygroscopic. It absorbs water. बच्चे, it is hygroscopic. It absorbs water from air in nature. This is true. A is true. एक मिनट. Many impurities, sulfates along with chlorides, deliquescent nature. All right, deliquescent nature. Deliquescent का मतलब होता है बच्चे they absorb water and turn into solution. अब इसमें से अब देखते हैं करेक्ट. It is hygroscopic and it absorbs. It is not hygroscopic. This is wrong. एक मिनट. इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बोला है. इम्प्योरिटीज के कारण होता है. ऑलराइट बच्चे, प्योर NaCl ये पिक करेंगे. इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक. इट शोज हाइग्रोस्कोपिक नेचर ड्यू टू इम्प्योरिटीज. बच्चे केस स्टडी में डेलिक्वेसेंट बोला हुआ है, विच इज आई थिंक रॉन्ग, क्योंकि डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है सॉल्ट्स दे एब्जॉर्ब वाटर एंड दे विल टर्न इनटू सॉल्यूशन पेस्ट. So this is something we don't observe with NaCl. Hygroscopic तो होता है, it can absorb water. 53C. Question number 54. Nature of aqueous solution of NaCl. बच्चे common salt NaCl. Parent acid is HCl. Parent base is NaOH. So it will be neutral. It will be neutral. Which of the following compounds is alkaline in aqueous medium? Alkaline. बच्चे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ठीक है. Then some statements regarding salt NaCl are given below. It is prepared by chloralkali process. Wrong. It is a white crystalline substance. True. Rocks and also rock salt. It is neutral. Okay. तो बच्चे 2, 3 and 4 are correct. Option 2, 3 and 4 are correct. We'll pick D option. Is it clear, everybody? All right. उसके बाद है बच्चे case study 3. This is the last one. What is solar radiation? Energy radiated from sun in all directions. A. What type of radiation does Earth emit? Okay, ये क्या दिया हुआ है? This is something which is water is strong absorber, zone during formation, clouds strongly reflect scatter incoming sunlight. Infrared. All right. बच्चे this is something which is not in your syllabus. ये question तो out of syllabus ही हो गया. I think we should pick up infrared. Out of syllabus questions हैं ये. You can leave these. बच्चे out of syllabus. ये आपके अभी कोई भी chapter में नहीं है. You can leave this. Out of syllabus questions हैं ये. But this case study is actually out of syllabus. I don't know. This is based on solar energy or something. Not correct. So question number 57, 58, 59, 60, you can leave. This is out of syllabus. ये आपके syllabus में नहीं है portions. All right. Yes, our environment या sources of energy में बन सकता है, but that is something that is not part of term 1. चलो, तो बच्चे we are through. We are through with this paper also. All right. Bachche, tomorrow you will have your class at 8:15. Is that clear to everybody? 8:15 PM tomorrow. Tomorrow is Tuesday. All right. तो कल एक और sample paper हम discuss करेंगे. All right. चलो. So बच्चे, I'll be ending this session here. See you all tomorrow evening.